Hello student, welcome to the 7th lecture of redox reaction. In this lecture we are going to talk about the applications of oxidation state. There are four basic applications of oxidation number. Determination of the strength of acid. Second one is determination of possible molecular formula of the compound. Third one is determination of oxidizing and reducing agent. And last one is determination of equivalent weight of oxidizing and reducing agent. The fourth one is very important. Now if I look at the first one is determination of strength of an acid. Determination of strength of an acid. Now see, in case of an acid, higher is the oxidation number. Note, higher is the oxidation number, more is the acidic strength. More will be the acidic strength. So higher is the oxidation number, more will be the oxidation, or more will be the acidic strength. For example, if I talk about HNO2 and HNO3, if I want to compare the acidic strength of nitrous acid and nitric acid, अभी इन दोनों में से ज़्यादा strong acid और weak acid कौन है उसको compare करने के लिए आप oxidation number का help ले सकते हो. Say for example, in case of HNO2, the oxidation number of nitrogen is +3 by X method, right? In case of HNO3 it is +5. अभी देखो दोनों के अंदर एक ही H है, बराबर है, but किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है? नाइट्रोजन का in +5. So therefore HNO3 is a stronger acid as compared to HNO2. Now see the second example. HClO, HClO2, HClO3 and HClO4. Correct? Now sorry, in the first example, chlorine is in +1 oxidation state. Second, it is in +3 oxidation state. In the third one, it is in +5, and in the last one, it is +7. So higher is the oxidation number of the metal, more is the non-metal, more is the acidic strength. So इन सब में से बेटा सबसे ज़्यादा strong acid कौन सा हो जाएगा? Fourth one. ठीक है? So HClO4 is also known as father of all acids. It's a very strong acid. Third example, let us solve for few more examples. H2SO3 and H2SO4. So here the sulfur is in 3 2s are 6, 6 minus 2, it is 4, +4 oxidation state. Here the sulfur is in +6 oxidation state. So H2SO4 sulfuric acid is a stronger acid. ठीक है? Now fifth one, SO2 acidic oxides and SO3. Here in the first case the sulfur is in +4 oxidation state. In the second one it is +6 oxidation state. So SO3 will form stronger acid. Now in this you should remember one exception. The exception is H3PO2, H3PO3 and H3PO4. ठीक है? In this the phosphorus is in +1 oxidation state. कैसे? 2 2s are 4, 4 में से 3 गया 1, right? Here the phosphorus is in +3 oxidation state and this one it is +5. तो basically इस concept के हिसाब से H3PO4 सबसे ज़्यादा acidic होना चाहिए, but it is not. इसको exception के तौर पे याद रखना. Is it clear? This is the first application of oxidation number. Let's move to the second application of oxidation number, to determination of possible molecular formula of the compound. This is very important. Determination of possible molecular formula of the compound. Determination of possible molecular formula of the compound. इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करेंगे. Say for example, क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है. In a compound of A, B and C, A is in +2 oxidation state, B is in +5 oxidation state and C is in -2 oxidation state. ठीक है? Which of the following is the correct formula of A, B and C? So first option it is given as A2BC twice. Second option it is A2BC thrice. Third option it is A3BC4 twice, and the last option is A2BC4 thrice.
ना इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन है ना. हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू विच फॉर्मूला इज करेक्ट. ना सी यू हैव टू यूज ट्रायल एंड एरर मेथड इन दिस. कैसे, ध्यान दो. इफ यू टेक द फर्स्ट वन, करेक्ट, द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल. ना फर्स्ट मैं पूरा आपको सॉल्व करके बताता हूँ. सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ आप लोग ओरली कर सकते हैं. कैसे देखना, इफ A2 है, A2 बोला है ना, तो A2 का मतलब +2 का चांस, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा बिकॉज A2 है. अगर मैं बात करूँ BC की, BC का वैल्यू ऐड करो. BC मतलब +5 एंड -2, सो इट इज +3, राइट. तो +3 इंटू 2 इट इज गोइंग टू बी +6. क्या आंसर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है. सो द फॉर्मूला फर्स्ट वन इज रॉन्ग. फर्स्ट one is not your answer. Let's move to the second one. If we go for the second one, that is A2 BC thrice. In this case, A2 means it is again +4. BC is +3, right? +5 -2, it is +3. 3 3s are 9, so +9. So this is again not equal to 0. This answer is also wrong. Let's move to the third one. Option number third. C option, it is A3 BC4 twice, correct. A3, A के ऊपर कितने का चार्ज है? +2 का. So 3 2s are 6. ये आपका +6 हो गया. BC4 बोला है उन्होंने. C4 मतलब -8. कैसे हुआ? नहीं समझा सर. देखो C4 है ना, तो 4 2s are 8 मतलब -8 और +5 इट इज -3. -3 इंटू 2. नहीं समझा, सो रहे हो क्या? ध्यान दो इधर वापस से. C4 मतलब -8 हो गया. -8 है, राइट. -8 और यहाँ पे +5 है. -8 और +5 -3. -3 इंटू 2 इट इज -6. तो देखो यहाँ पे 0 आ रहा है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. आंसर 0 आ रहा है. दैट विल बी द राइट आंसर. ना इफ यू गो फॉर ऑप्शन डी, आंसर आ तो गया. 2 सर्कल तो करने नहीं है, पर फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है. इट इज BC4 थ्राइस, राइट. A2 का मतलब +4 हो जाएगा बिकॉज एक के ऊपर +2 का चार्ज है. सो A2 इज गोइंग टू बी +4. BC4 अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था, कितना था? -3. सो 3 3s are 9. सो इट इज अगेन नॉट इक्वल टू 0. तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो. एंड दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन. यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस. द क्वेश्चन सेज द वैलेंसी ऑफ A is +2 and B is -1, C is -5. Which of the formula is the correct one? ठीक है, it is more than one type question. It is A2 BC. Again I am saying it is more than one type. A B3 C. Option C A2 B2 C and option D A3 BC. Now let's solve. आप लोग pause करो वीडियो and then solve this question. ठीक है. ओके, ना सी द फर्स्ट वन. सपोज अगर हम लोग चेक करते हैं कि फर्स्ट वाला आंसर राइट है कि नहीं है, तो अभी ओरली चेक करना है. A2 बोला है, +2 है. A2 है ना, तो इट इज 2 2s are 4. तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया +4, राइट. B के ऊपर कितने का चार्ज है? -1 और C के ऊपर -5 है. तो -1 और -5 मिला के कितना हो जाएगा? इट विल बिकम -6. सो इज इट इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स? नो. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द सेकंड ऑप्शन. Let's move to the second option. There was a mistake. It was +1. It was +1. Solve this again. होता है इंसान में से होती है गलती. ठीक है, now listen. It is 2 2s are 4. Correct. B के ऊपर कितना है? +1 and -5. It is -4. So the total comes out to be 0. So ये ऑप्शन आपका राइट है कि रॉन्ग है? राइट है. बट मैंने आपको बोला था इट इज मोर देन वन टाइप, मतलब इसके एक से ज़्यादा आंसर राइट हो सकते हैं. तो चेक द सेकेंड वन ऑल्सो. इट इज A is +2. B3 बोला है. व्हाट इज द चार्ज ऑन B बच्चों? इट इज +1. सो 3 1s are 3, करेक्ट. माइनस यहाँ पे C के ऊपर कितना चार्ज है? -5. सो 3 + 2 5. 5 - 5 is 0. सो अगेन ये भी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है. So this option is also correct. So we have two options correct for this, that is option A and option B. Now check the C option. It is +2 charge on A, right? So 2 2s are 4. So +4. B के ऊपर चार्ज कितना है? +1. So 2 1s are 2, right? So +2. So total कितना हो रहा है? +6 हो रहा है. But C के ऊपर चार्ज कितना है? -5. So this is not equal to 0. So this option is wrong. Third option, fourth option की तरफ जाते हैं. It is 3 2s are 6.
6 हो जाएगा। बी के ऊपर कितने का चार्ज है, +1 का, बट -5, सो दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। सो इसका आंसर राइट कौन सा है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एप्लीकेशन नंबर थर्ड, third application, determination of oxidizing and reducing agent, right? ना ध्यान दो, very important। हम लोग इसको एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करेंगे। Suppose if we talk about chlorine, in the previous lectures I have told you chlorine can show different oxidation states starting from -1 से 0, +1, +3, +5 एंड +7। ना स्टूडेंट ध्यान देना, अगर क्लोरीन अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, एकदम लोएस्ट में, राइट, तो स्टूडेंट ध्यान दो, नंबर लाइन तो सबको पता ही है। इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज ऑक्सीडेशन एंड राइट टू लेफ्ट इज रिडक्शन। सो ना ध्यान दो, ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन, राइट। नाउ इफ आई कंसीडर -1 जो है ये वाला, राइट, अगर क्लोरीन अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है तो -1 से पीछे जा नहीं सकता, इधर अलाउड नहीं है। तो अगर क्लोरीन यहाँ पे है तो वो सिर्फ अपना क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है, मतलब वो सिर्फ यही साइड में जा सकता है। तो इसका मतलब उसके पास में ऑक्सीडेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है। सो देयरफॉर एनी एलिमेंट इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन ओनली एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी वेरी important statement, any element in lowest oxidation में it can only act as a dash agent, reducing agent। okay, अगर क्लोरीन बच्चों +7 में है, +4, +5, +6, +7, तो क्या वो +7 से आगे जा सकता है, नहीं। तो अभी वो सिर्फ किस साइड में आ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब वो खुद का सिर्फ क्या कर सकता है, रिडक्शन। और अगर खुद का रिडक्शन कर रहा है तो कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो क्या सीखने मिला, एनी एलिमेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विल ओनली एक्ट एज डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इट विल ओनली एक्ट एज डैश रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। Now lowest oxidation state में reducing agent, highest oxidation state में oxidizing agent. So simply what you have to remember, HO. What is HO? Highest oxidation, lowest reducing, HOLR। highest में अगर है तो oxidizing agent, lowest में है तो reducing agent। तो क्लोरीन अगर -1 में है स्टूडेंट तो it will only act as reducing agent, और अगर +7 में है तो oxidizing agent। अगर वो इसमें से किसी एक भी वैल्यू में है, जैसे अगर मैं बात कर लूँ +3 में है, तो +3 में है तो वो इस साइड में भी जा सकता है, इस साइड में भी जा सकता है। सो इन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब में इट विल एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई भी एलिमेंट बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का काम, दोनों का काम कब कर सकता है, जब वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ना तो लोएस्ट में हो ना हाईएस्ट में हो। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन बच्चों -2, -1, 0, +1, +2 तक जा सकता है। तो अगर वो -2 में है मतलब लोएस्ट में है, सो लोएस्ट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो हाईएस्ट में है तो कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर वो 0 है सो इट कैन एक्ट एज बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज oxidizing agent. This is very very important. If you talk about sulfur belongs to group number 16. It is 286. तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है,
2, so -2, इट कैन बी 0 +2 +4 और मैक्सिमम जो होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है +6. सो अगर वो -2 में है दैट इज H2S, अगर तो H2S में इट विल ओनली एक्ट एज डैश एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट. अगर वो H2SO4 है, ऑर्गेनिक में हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है सल्फर इज इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, H2SO4 इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो अगर लोएस्ट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट और हाईएस्ट में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और अगर वो बीच में बैठा है कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर जैसे अगर SO4 की बात, SO2 की बात करो, SO2 में सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में है, तो वो ना तो लोएस्ट में है ना हाईएस्ट में है. सो इट विल एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as reducing agent. So this is your application number 3rd. 4th and the last application, determination of equivalent weight of oxidizing and reducing agent. मोल कंसेप्ट चैप्टर में हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ा था, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये डिटेल में नहीं सिखाऊंगा. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलार मास अपॉन n फैक्टर, करेक्ट, and upon क्या n factor. In case of oxidizing or reducing agent, it will be the molar mass of oxidizing or reducing agent divided by it is n factor. और ये n factor मैंने आपको मोल कंसेप्ट में डिटेल में सिखाया हुआ है, आप वो लेक्चर्स में वो आपके नोट्स रेफर कर सकते हो. तो यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर को, बिकॉज इक्विवेलेंट वेट जो है वो कंसेप्ट पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. कौन से चैप्टर में? मोल कंसेप्ट चैप्टर में. इज इट क्लियर? Thank you class.